Now, as the next topic is heating effect of current, or it is also known as Joule's heating effect of current, because this effect was identified by the Joule. So, in honor of that, this effect is known as Joule's heating effect of current. So, जैसा कि नाम suggested है कि it is a heating effect of current. Whenever electric current is flowing through any conductor or any resistor, heat energy is produced in the conductor wire. So that effect of current is known as heating effect of current. जब भी क्या होगा, किसी भी कंडक्टर वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो उस करंट की वजह से उसमें जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, सो दैट इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. Now, what is the cause behind the production of heat energy as you supply the current? मेन हमें जो रीजन है वो डिस्कस करना है कि सपोज इफ आई एम टेकिंग अ रेजिस्टर वायर और कंडक्टर वायर ऑफ रेजिस्टेंस R and it is connected to a battery. So through the battery, current is flowing through the conductor wire and the potential developed across the wire is measured by the voltmeter which is connected to the parallel. So as we supply the current in the conductor wire with the help of battery, the heat energy is produced in the wire. मीन्स क्या होता है, आप ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ टाइम बाद ये वायर करंट की वजह से गर्म हो जाता है. कंडक्टर वायर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो दैट इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. नाउ व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी? देखिए, as we know that conductor wire consists of free electrons. इस कंडक्टर वायर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है. सपोज मैं इस कंडक्टर की जगह इस तरीके से कंडक्टर वायर फॉर्म कर दूं. ये आपका कंडक्टर वायर है which consists of free electrons. When this conductor wire is connected to the battery, all these electrons are moving in a one particular direction. ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू करेंगे. As we connect the conductor wire with the battery, or end of the conductor is connected through the battery, free electrons present in the conductor is moving in a one particular direction. As they are moving from one point to another point of the conductor, they collide with other ions of conductor which are initially at rest. क्या होगा, जैसे ही आप क्या करेंगे, इस कंडक्टर वायर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इस कंडक्टर वायर में जो भी अवेलेबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू करेंगे. तो जैसे ही वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, as you connect the conductor wire with the battery, the free electrons present in the conductor is moving in a one particular direction. As they are moving in a one particular direction, they collide with other ions of conductor. देखिए, कंडक्टर के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे मेटल आयन हैं. क्या है, दूसरे मेटल आयन है. जैसे इफ यू आर टेकिंग अ कॉपर वायर, तो कॉपर वायर के अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कॉपर आयंस होंगे, और वो कॉपर आयंस क्या होंगे, रेस्ट में होंगे. लेकिन जैसे ही आप इस कंडक्टर वायर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो उसमें जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से दूसरे एंड मूव करना शुरू करेंगे. तो as they move from one point to another point, or from one direction to in a one particular direction, they collide with the other ions of metal or other ions of the conductor wire. As they collide with the other ions of conductor wire, they increases their velocity because initially they are at rest. वो दूसरे जो आयंस हैं वो रेस्ट में हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू करेंगे तो वो दूसरे आयन जो रेस्ट में है, they acquire some velocity. As they acquire some velocity, their kinetic energy increases, because the kinetic energy is what, the energy possessed by the particle or system due to its motion. तो जो आयन पहले रेस्ट में थे,
जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे उनकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा, जैसे उनकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा उनकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा, एंड दैट इंक्रीमेंट इन अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस appears as a heat energy. आयंस की काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो एवरेज इंक्रीमेंट इन अ काइनेटिक एनर्जी appear as a heat. Is it clear? When we connect the conductor wire with the help of battery, the battery supply the current in the conductor wire, and due to that current, heat energy is produced in the wire. So that effect of current is called heating effect of current. That effect of current is called heating effect of current. Now, what is the mechanism behind the production of heat energy? As you supply the current in the wire, what mechanism is take place? Because when we connect the conductor wire through the end of a battery or a cell, तो क्या होगा? All the free electrons present in the conductor wire are moving in a one particular direction. As they are moving in one particular direction, electrons collide with the other ions of conductor which are initially at rest. As the electrons are collide with them, they increases their velocity. As their velocity increases, their kinetic energy also increases, because the kinetic energy is the amount of motion processed by the body or by the particle. तो velocity बढ़ेगा, तो velocity बढ़ने की वजह से kinetic energy बढ़ेगी, and that increment in the kinetic energy is appear as a heat energy, because as we know that energy is neither be created nor be destroyed, transform from one form to another form. तो आयंस की काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो इंक्रीमेंट हीट एनर्जी के फॉर्म में अपीयर हो जाएगा. दैट्स व्हाई दिस वायर प्रोड्यूस द हीट एनर्जी. तो जैसे ही आप कंडक्टर वायर में एक सर्टेन पीरियड के लिए करंट सप्लाई करेंगे तो उस कंडक्टर वायर में क्या होगा? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा. सो दैट इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. इज इट क्लियर? नाउ वी डिराइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हीट एनर्जी. कि कंडक्टर वायर में जब मैं करंट फ्लो करूंगा तो उस करंट की वजह से उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है. तो न्यूमेरिकली हीट एनर्जी का अमाउंट कितना है दैट वी हैव कैलकुलेट. तो इसके लिए मैं क्या कह रहा हूं? नाउ आई एम टेकिंग अगेन अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R that is connected to the battery of voltage V. Through the battery, current is flowing through the wire or in the resistor. The magnitude of current is I, and the potential difference across the resistor is V. देखिए, I क्या है? Current flowing through conductor wire. V क्या है? Potential difference across the ends of conductor. ठीक है. R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. नाउ व्हेन वी connect a resistor wire of resistance R through the battery of voltage V, the current I is flowing through the conductor wire, and the potential difference across the conductor wire is V. Now, as we know that potential difference across conductor is equals to work done per unit charge. हमने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन डिस्कस करी है. सेकंड टॉपिक जो हमने इस यूनिट के अंदर डिस्कस किया था, द पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो V इज इक्वल टू W बाय Q. तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी? V इंटू Q. वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज. ठीक है. अब सेकंड डेफिनेशन हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सेकंड डेफिनेशन or second point, that is, as you know that electric current is what? Rate of flow of charge. I is equals to Q by T. तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? I into T.
देखिए करंट का एक्सप्रेशन क्या होता है, करंट होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू टी। ना पुट द वैल्यू ऑफ Q इन द इक्वेशन 1, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन दैट इज W is equals to V into I into T, and that work is appears in the form of heat energy। क्योंकि देखिए कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, तो ये जो वर्क डन होगा चार्जेस को इस एंड से इस एंड मूव करवाने के लिए, यही वर्क डन आपका हीट एनर्जी के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। सो द एक्सप्रेशन ऑफ हीट एनर्जी इज व्हाट, H इज इक्वल्स टू, हीट एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे H से, सो हीट एनर्जी इज V into I into T, that is the first expression of heat energy। H is equals to V into I into T, is it clear? फर्स्ट हमने क्या कैलकुलेट किया, वर्क डन कैलकुलेट किया, वर्क डन आया W is equals to V into Q, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। फिर सेकंड इक्वेशन हमने कैलकुलेट किया Q is equals to I into T, Q की वैल्यू यहां प्लेस कर ली, तो हीट वर्क डन का एक्सप्रेशन आया V into I into T, और यही वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर वायर इज VIT, और इसका यूनिट क्या होगा, जूल, क्योंकि वर्क डन का यूनिट होता है जूल। तो हीट एनर्जी का एक्सप्रेशन आया V into I into T, इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ वी आर कैलकुलेटिंग टू मोर एक्सप्रेशन ऑफ हीट एनर्जी। We calculate the next two expression of heat energy। First expression आया V into I into T, that we have taken equation number 1, let's suppose। Now from Ohm's law, V is equals to IR, now put the value of I in the equation 1, तो H is equals to I into R into I into T। देखिए इस V की जगह हमने क्या प्लेस कर दिया, I into R, तो ये हो गया I into R into I into T, तो हीट एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या हो गया, I square RT। So that is the second expression of heat energy, H is equals to I square RT। नाउ थर्ड एक्सप्रेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ओम्स लॉ से ही यूजिंग करेंगे। नाउ एज वी नो दैट V इज इक्वल टू IR, तो I की जगह क्या आ जाएगा, V by R। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ I इन द इक्वेशन 1। पहले सेकंड एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए हमने V का वैल्यू पुट किया था, थर्ड एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए हम I की जगह V by R पुट कर देंगे, तो H इज इक्वल टू V इंटू V by R इंटू T, तो H क्या हो जाएगा, V square upon R into T। So that is the third expression of heat energy। So total 3 expressions are there for the heat energy। H is equals to VIT, H is equals to I square RT, H is equals to V square upon R into T। So these are the 3 expression of heat energy। तीनों में से जो वेरिएबल्स हमारे पास अवेलेबल होंगे उस अकॉर्डिंग हम हीट एनर्जी का एक्सप्रेशन यूज करेंगे। एंड हीट एनर्जी इज वन ऑफ द काइंड ऑफ एनर्जी, सो इट्स एसआई यूनिट इज जूल। एसआई यूनिट क्या होगा, जूल। सो दैट इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इज इट क्लियर? तीनों एक्सप्रेशन आपको समझ में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज electric power। Now as we discussed, as you studied earlier in the 9th standard, what is power? Rate of doing work with respect to time, that is called power।
तो पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू W/T। ठीक है, यह होता है आपका पावर, और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट इज जूल पर सेकेंड और वॉट। तो पावर क्या हो गया, W/T। Now in the last article, in the Joule setting effect of current, basically we are derive the three expression of work done। हमने जो हीट एनर्जी का एक्सप्रेशन डराइव किया, बेसिकली दैट इज व्हाट द वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तो वर्क डन के तीन एक्सप्रेशन हमारे पास कौन कौन से आए थे, VIT, देन I²RT एंड देन V²/R into T। सो दैट इज अ वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज। तो इसी के बेसिस पे आपके इलेक्ट्रिक पावर के तीन एक्सप्रेशन बन जाएंगे। इलेक्ट्रिक पावर is W/T, so that is VIT/T, T से T कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक पावर का पहला एक्सप्रेशन क्या बन गया, P इक्वल्स टू VI। पहला एक्सप्रेशन क्या बन गया, इलेक्ट्रिक पावर इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। ठीक है, सेकंड एक्सप्रेशन P इक्वल्स टू I²R into T अपॉन T। तो सेकंड एक्सप्रेशन बन गया I²R। ठीक है, एंड थर्ड एक्सप्रेशन ऑफ पावर, इलेक्ट्रिक पावर इज P इज इक्वल्स टू V²/R into T डिवाइड बाय T, क्योंकि ये वर्क डन का एक्सप्रेशन उससे T से डिवाइड कर दिया, तो थर्ड एक्सप्रेशन बन गया पावर का V²/R। क्या बन गया, V²/R। सो इलेक्ट्रिक पावर, देयर आर थ्री एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पावर, V into I² into R and V²/R, and its SI unit is the same as the power, that is watt or joule per second। तो इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड और पावर, सॉरी जूल पर सेकेंड और वॉट। इज इट क्लियर? तो पावर के जिस तरीके से हीट एनर्जी के तीन एक्सप्रेशन है, VIT, I²R into T और V²/R into T, similarly electric power has a three expression, V into I² into R and V²/R। SI unit for heat energy is joule and SI unit for electric power is watt। Is it clear? Any doubt in that part? इस सेक्शन में कोई डाउट हो तो बताइए।